And the most valued parent. This beautiful evening of dark blue sky, I, Humaira, with my co-host Aisha, are here to extend you our warm and cordial welcome to the grand celebration of this institution. our institution has always aimed to develop and groom the abilities, creativity and hidden talents of young minds. Today is completely yours. Today is the day of joy. It is the day of celebration. It is the day to cheer with happiness, to clap with enthusiasm and enjoy with great freedom. We have rolled down a carpet of grand welcome for all the dignitaries, parents, well-wishers and friends. Before starting the event, I would to extend my hearty welcome to our chief guest, honorable chief guest of the event, Advocate Abdul Muqtadir sir. Advocate Abdul Muqtadir sir has been born and brought up in Manvi, Raichur district. Studied up to 10th standard in Manvi and Hassan is Bellary, and thereafter studied BSc from PCM combination from Christ College, Bangalore. Later went to Delhi to do LLB from Campus Law Center, Delhi University. He enrolled as an advocate in the year 2014 and initial period of 1.5 years practiced at Bangalore. Thereafter, he started run his law office, namely Suprema Law Associates, specialized in civil and constitutional litigation and do transactional work also. Next, I would like to extend my hearty welcome to honorable guest of the honor, Dr. Safia Parveen ma'am. Dr. Safia Parveen ma'am, born in Bellary. She completed her MBA from Gulbarga University and later was her PhD decorated in knowledge management practices from Gulbarga University. She was one among the first appointees in Central University of Karnataka in Gulbarga in 2011 as an assistant professor in the Department of Business Studies in Central University, Kalburgi. Since then, she has published around 15 papers in reputed national and international journals and is guiding 4 PhD scholars, of whom one is already awarded doctorate. Thank you for attending our annual day event in their busy schedule. Our heartfelt thanks to you, sir and ma'am.
I feel proud to give my warm welcome to our Honorable President Syed Altaf Hussain Sir, Vice President Abdul Rahim Sir, Secretary Uzair Sir, Vice Secretary Syed Asad Sir, and the Principal Ms. Yasmin Ma'am. With immense affection and admiration, we welcome all the parents who are the world for their children. Thank you for joining us and giving the incredible student for the school. And with strongest pillars of any institution, and the other staff member and all the bright students present here to make the ceremony worthwhile. Inviting guests on the dais is like adding fragrance to our stage. Our principal ma'am to offer a bouquet as a mark of respect to our guest of honor, Dr. Safia Parveen ma'am. Now I request our President, Sir Altaf, to present a bouquet as a token of respect to Advocate Abdul Muqtadir Sir. Sir, next I request Rahim Sir to offer a bouquet as a mark of respect to our President Altaf Hussain Sir. Sir, Rahim sir. Request Uzair Sir to offer a bouquet as a token of respect to our Vice Secretary Asad Sir. Sir. Request Altaf Sir to offer a bouquet as a mark of respect to our Vice President Rahim Sir. Sir. Hello. Altaf to present a bouquet as a token of love to our Principal Yasmin Ma'am. डाइस पे तशरीफ़ फरमा मेहमान खुसूसी और सामाइन इकराम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वैसे स्कूल का नाम तो बचपन है और सामाइन में तो तमाम लोग बूढ़े जवान नज़र आ रहे हैं, तो मैं बच्चों को मुखातिब होते नहीं हो सकता, इसलिए मैं आप तमाम लोगों को मुखातिब होना चाहता हूँ। वैसे नाम बचपन से तो
सोचने में ऐसा लग रहा है कि कुछ अपनी बचपन की बातें कहीं जाए, पर अपनी बचपन की बातें तो कहीं नहीं जा सकती। पर इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि मैं ये बच्चे जो इस बचपन स्कूल में पढ़ रहे हैं उनके बचपन के लिए क्या किया जा सकता है। तो मेरा मानना ये है कि मेरे भी बच्चे इसी तरह के 6-7 साल के हैं, तो मैं भी 3 बच्चों का बाप हूँ। तो मैं ये समझता हूँ कि माँ बाप की जिम्मेदारी सबसे पहले ये है कि उन बच्चों को एक अच्छी सी तालीम दे। अब तालीम देना तो हर एक को पता है, इसमें कोई 2-3 बातें बोलने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि हम तमाम सुनते आए हैं कि इक़रा बिस्मि रब्बिकल अज़ीज़ से लेकर वो तमाम अहादीस, जिसके बारे में मुझे कुछ कहना नहीं है। पर जिस बात पे मैं स्ट्रेस देना चाह रहा हूँ या जिस बात को मैं बहुत ही ज़्यादा अहमियत जो देता हूँ वो ये है कि हर किसी की ख्वाहिश है कि अपने बच्चे को अच्छा पढ़ाए, और उस ख्वाहिश का जो पस मंज़र है या उस ख्वाहिश को पूरा करने का जो तरीक़ा है हमारे पास वो ये है कि अच्छे से अच्छे स्कूल में डाला जाए। तो अच्छे से अच्छे स्कूल की ढूंढने की जो काविश है, उस काविश का एक ही तरीक़ा है कि हम एक महंगे से महंगे स्कूल में डाल देते हैं, और जैसे ही बच्चा 9 से 5 तक अपने स्कूल में पढ़ाई हासिल कर कर आता है तो हम वालिदैन समझते हैं कि हमारी जिम्मेदारी ख़त्म। या कुछ ऐसा हो सकता है कि स्कूल के अंदर उस बच्चे को कुछ होमवर्क लगाया जाता है और वो हम उसके साथ करते हैं, ये छोड़कर कुछ और मुझे नज़र नहीं आता। तो मैं ये बात कहना ये चाहता हूँ कि बच्चों को ग्रूम करना चाहिए। बच्चों को पढ़ाने से ज़्यादा मैं ये समझता हूँ कि ग्रूमिंग, जैसे मुझे उर्दू का लफ्ज़ उसका दिमाग में नहीं आ रहा है, ग्रूमिंग जैसे किसी एक झाड़ को ग्रूम करने के लिए पानी की ज़रूरत है, किसी एक पेड़ के लिए उसके लिए एक मतलब रोशन सामान चाहिए। तो उसी तरह हर बच्चे को वही एक रोशन और खुला हुआ माहौल चाहिए। तो हम माँ बाप का मसला ये हो गया है कि हम चाहते हैं कि आज ही हम ये तय कर लिए कि मेरा बच्चा जो है डॉक्टर बनेगा, डॉक्टर बन के 100 पैसे कमाएगा। तो ये जो अपने बच्चों के साथ जो हम लोग ख्वाहिश लगा के रखें पहले ही, वो इस बात को मैं गलत मानता हूँ। तो उस पस मंज़र में बात यही कहना है कि हम लोग अपने बच्चे को अपने माश का ज़रिया समझते हैं कि हमारे बुढ़ापे में इन्हें कुछ साथ दे देगा। तो इस सोच के खिलाफ बने कि बच्चे हमारे माश का ज़रिया नहीं है। जिस तरह मैं मेरे माँ बाप का माश का ज़रिया नहीं हूँ, उसी तरह जो है मेरे बच्चे मेरे माश का ज़रिया नहीं है, बल्कि हमारे बच्चे एक समाज के अंदर कुछ ऐसा काम करे जिससे समाज का कुछ भला हो। जब कोई बच्चा समाज की भलाई के लिए काम करेगा तो माश के पीछे नहीं भाग सकता। आप ये बात हमेशा के लिए याद रख लीजिए। अगर कोई समाज के अंदर चेंजेस लाना चाहता है या समाज के अंदर कोई रेवोल्यूशन लाना चाहता है, उस बच्चे से या उस माँ से उस बाप से जो भी रहेंगे उसके, मतलब लोग जो है अपना रेवोल्यूशनरी काम जो 35 से 50-55 साल की उम्र में करते हैं, तो इन हजरात से आप कभी भी माशी तवक्को नहीं रख सकते। तो मेरी गुजारिश ये है कि तमाम माँ बाप ऐसे होंगे जो मेरी उम्र के होंगे, 30 से लेकर 45 साल के, जिनके बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे होंगे, क्योंकि बचपन स्कूल है तो 7 साल मतलब वही शादियाँ हो कि 8-9 साल के लोग हैं आप लोग। तो आप लोगों से मेरी ख्वाहिश ये है कि आप इस बच्चों को कभी भी जो है अपने माश का ज़रिया हरगिज़ ना समझें। आप ये सोचें कि आप अपनी जगह खुद कफील रहें, बच्चा जो है ढंग से पढ़े, ढंग से कुछ समाज का काम करे। इसलिए होता ये है कि मैंने बहुत कुछ देखा ये है कि जैसे ही बच्चा 25 साल का होता है उसे कमाने की फ़िक्र, थोड़ा बहुत कमा लेता है तो शादी की फ़िक्र, शादी जैसे होते हैं फिर इसकी फ़िक्र। यही फ़िक्र में वो जो उसकी फ़िक्र का जो बड़ा मसला ये है कि उस माँ बाप की ख्वाहिश है कि भाई ये मेरा बच्चा माश का ज़रिया रहे। तो ये एक बात मैं कहना चाह रहा था। दूसरी बात यह है कि बच्चों को पढ़ाने की जो बात है, जिसके अंदर मैं बहुत ही अहमियत ये देता हूँ, स्कूल से कुछ होने वाला नहीं है। माफ़ी चाहता हूँ, बचपन मैनेजमेंट मुझे गुस्सा करेंगे। तो स्कूल से किसी का कुछ नहीं हुआ, जो कुछ होता है घर से होता है। ये बात आप लिख लीजिए। आप किसी भी महंगे स्कूल में जाके डालिए अपने बच्चों, कुछ भी करें। हाँ, मेरा मानना है कि यूनिवर्सिटी से कुछ होता है। जैसे यहाँ पे प्रोफेसर मोहतरमा बैठी हैं,
तो यूनिवर्सिटी में बच्चा 18, 19, 20 साल जब पहुंचता है तो जहाँ पे उसकी एक इंटेलेक्चुअल ग्रूमिंग होती है तो वहाँ बहुत कुछ फ़र्क पड़ता है, पर स्कूल से ज़्यादा कुछ नहीं होता मेरा मानना। स्कूल में उस उम्र में अगर कोई बच्चे को कंट्रीब्यूशन कर सकता है तो माँ बाप कर सकते हैं, घर का माहौल कर सकता है। अब जब ये बात मैं कह रहा हूँ तो घर का माहौल क्या चाहिए, मेरे हिसाब से घर का माहौल ये चाहिए कि घर के अंदर एक ढंग सी, वसी भी नहीं, एक ढंग सी लाइब्रेरी होना ज़रूरी है। अगर आपके घर में लाइब्रेरी नहीं है जहाँ पे बच्चा अपना वक्त अच्छे तरीके से गुजारने के लिए उसके पास 4 किताबें पढ़ने के लिए अगर नहीं है तो समझ लीजिए कि आपका बच्चा जो है तोता जिस तरह रटता है ना उसी तरह रटा हुआ एक स्टूडेंट रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों की अपनी एक क्रिएटिविटी हो, खुद में एक खुद कफील रहना चाहता है, खुद पे एक अपने डिसीजन लेने वाला अगर आप अपना बच्चा चाहते हैं, बार बार मैं बच्चा कह रहा हूँ उसका मतलब उसमें बच्ची भी है, तो ये मत बोलिए कि मैं लड़की को निकाल रहा हूँ बात में, तो चाह रहे हैं तो ज़रूरी है कि हमारे घरों में लाइब्रेरीज होना। जिस तरह मैं बारहा मैं कह चुका हूँ कि अगर कोई माँ बाप या कोई लोग जो है घर को बगैर किचन के तस्वुर कर सकते हैं क्या? कोई ऐसा घर है जिसके अंदर किचन ना हो? अगर किचन नहीं है तो घर ही नहीं कहलाता, और उस किचन से सिर्फ पेट भरता है। अगर वही थोड़ा स्टेप अगर आप बढ़ा के अगर आप अपना घर लाइब्रेरी के बगैर तस्वुर करते हैं तो बच्चे को दिमाग की ग़िज़ा कहाँ से मिलेगी? तो ज़रूरी है कि हम लोग जो है घरों में लाइब्रेरीज़ का एहतमाम करें ताकि बच्चों को जो है दिमाग की ग़िज़ा भी मिलते रहे। तो ज़रूरी यही 2 बातें जो मतलब मैं कहना चाहता, एक तो माँ बाप अपने बच्चों को माश का ज़रिया ना समझे, दूसरी बात यह है कि घर को जो है बग़ैर किचन के आप जिस तरह घर तस्वुर नहीं करते उसी तरह अपने घर को जो है कभी भी बग़ैर लाइब्रेरी के ना रखें। इसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि अब देख लीजिए, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ना अच्छी ढंग से उर्दू बोल पाऊँगा अगर मुझे उर्दू में कहा जाए, ऐसी कोई मेरी तकरीर नहीं रही जिसके अंदर अंग्रेज़ी लफ्ज़ ना हो, और उसी तरह मुझे अंग्रेज़ी में कहा जाए तो फिर मैं थोड़ा उर्दू का सहारा लूँगा। अगर मैं कन्नड़ में कुछ बोलने जाऊँ तो फिर कुछ ना कुछ और ज़बान का सहारा लूँगा। ये जो हमारी तरबियत भी किसी एक ज़बान पे पूरी तरीक़े से क्या कहते हैं इंडिपेंडेंटली उसी ज़बान में बोलने की ताकत हम खो चुके हैं, कुछ मुझे भी मिला क्या। अगर उर्दू में कहीं मुखातिब हूँ तो अंग्रेज़ी के अल्फाज का इस्तेमाल करता ही करता हूँ, तो एक टाइप का मैं लंगड़ा हूँ उर्दू में, उसी तरह मैं अंग्रेज़ी में लंगड़ा हूँ। तो ये इस तरह नहीं होना चाहिए। अगर लड़के हो लड़की जो भी हो, अगर उर्दू बोलते हैं तो पूरी तरीके से उर्दू बोलें, अंग्रेज़ी बोलते हैं तो पूरी तरह से अंग्रेज़ी बोलें, अगर कन्नड़ बोलते हैं तो पूरी तरह से कन्नड़ बोलना चाहिए। तो ये बोलने के लिए ताकत जो है पढ़ाई घर में लाइब्रेरी के पढ़ने से आती है, ना कि स्कूल के करिकुलम को फॉलो करने से आती है। करिकुलम फॉलो करने से क्या होता है, बहुत ज़्यादा है तो बच्चा जो है 1:2 वाला हो जाता है, 3-4 नर्सरी बोल लेता है और स्कूल की टाइमिंग के हिसाब से थोड़ा बहुत फर्मा बरदार नज़र आता है। तो बाद में जैसे जैसे वक्त गुजरता रहता है तो वो बच्चा आपको अहल नज़र नहीं आता। तो यही कुछ बातें थी जो मतलब मैं समझता हूँ कि इस रात में अब कल्चरल प्रोग्राम भी होने वाला, मैं आपके बीच में कबाब की हड्डी नहीं बनना चाह रहा हूँ। इसी बात के साथ अपनी बात को ख़त्म करता हूँ कि आप अपने बच्चों को माश का ज़रिया ना समझें। घर में जिस तरह आप किचन के बगैर घर को तस्वुर नहीं करते उसी तरह आप अपने लाइब्रेरीज का एहतमाम करें। और तीसरा जो है बच्चों को पढ़ने की आदत रहे ताकि उनकी ज़बान में पुख्तगी हो, उनकी ज़बान में जो है एक तरह का क्या कहते हैं कॉम्प्रहेंशन बढ़े, ताकि वो दुनिया को समझने समझाने मुखातिब होने के लिए उनके पास जो है एक ढंग सी वो क्या बोली रहे। इसी बात के साथ अपनी बात खत्म, आपके बताना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। Thank you very much, sir, for all your memorizing words to motivate us. That was really informative speech. Thank you, sir. It is our privilege to have our guest of honor, Miss Safia Parveen ma'am, to please come and speak a few words.
बिफोर आई स्टार्ट माफ़ी मांगना चाहती हूँ। अभी अभी जो अब्दुल सर ने जो पाक ज़बान से बात की है, शायद मैं उतनी पाक ज़बान से उर्दू ना बात कर पाऊँ। बेलारी से हूँ, गुलबर्गा से, और मेरी लैंग्वेज बहुत डिफरेंट है, तो माफ़ी चाहती हूँ अगर इफ आई एम नॉट एबल टू कम्युनिकेट प्रॉपरली। dignitaries on the dais, principal ma'am, parents and my little dear students. It's a pleasure. आज बहुत खुशी का एक मौका है कि इनविटेशन मिला एंड आई रेडीली एक्सेप्टेड। जब छोटे बच्चों को देखते हैं तो इट इज़ लिविंग अवर बचपन, एंड शायद टुडे आई एम ट्राइंग टू रीलिव माई बचपन हियर, looking at the little dots who came with the flowers and the bouquets, absolutely dearsome. I'm not here to teach anybody. एक कहानी कहना चाहती हूँ। उस कहानी के दौरान थोड़ी बहुत सीख है जो आज हमें माँ बाप और बच्चों को और टीचर्स को, हम तीनों को लेना है। अब बच्चे तो बहुत छोटे हैं, शायद समझ ना पाए। यहाँ पे जो भी मेरे भाई बहन बैठे हैं, शायद उनको थोड़ी बहुत समझ आ जाए तो समझूंगी कि आज मेरी कहानी सफल हो गई। ये कहानी ऐसी है कि साइबेरियन क्रेन्स जो ठंड के मौसम में दे माइग्रेट, अपने ठंडी के सीज़न में, मतलब उनके एरिया से कहीं और उड़ने के लिए। उसी दौरान एक साइबेरियन क्रेन फैमिली थी और रेडी हो रहे थे, विंटर आने वाला था, ठंडी आने वाली थी, एंड दे वर गेटिंग रेडी टू माइग्रेट। तो एक छोटा सा क्रेन आके कहता है, मैं शायद आप लोगों के साथ ना आ पाऊँ। ऐसी ज़रूरी थोड़ी है कि जब कोई सब उड़ के जाते हैं यहाँ से, मुझे भी उड़ के जाना है। आई वॉन्ट टू स्टे बैक। मुझे लिबर्टी दो कि आई विल स्टे बैक, मुझे आप लोगों के साथ उड़ के नहीं जाना। बहुत समझाने की कोशिश करते हैं, समझता नहीं है। तो फाइनली जब ठंडी और ज़्यादा हो जाती है तो ये एक लोग कहते हैं कि जब बर्फ़ ज़्यादा पड़ने लगेगी, उनके पैरों पे भी जम जाएगी और वो उड़ नहीं पाएंगे। तो उस छोटे से साइबेरियन क्रेन को छोड़ के वो लोग उड़ जाते हैं वहाँ से। 1 या 2 दिन में ठंडी इतनी बढ़ जाती है कि दिस फेलो रियलाइजेस कि मैंने गलती कर ली। अभी मेरे माँ बाप के साथ मुझे उड़ जाना चाहिए था। अभी तो मुझे कैसे भी करके जान बचाना है, और जिस डायरेक्शन में मेरे माँ बाप गए, मुझे उसी डायरेक्शन में उड़ के जाना है। अपनी पूरी ज़ोर से उड़ने की कोशिश करता है, बट थोड़ी ही देर बाद बर्फ़ अपने पंख पे पड़ते हैं और वो थक के नीचे गिर जाता है। और गिरता भी ऐसी जगह है, एक पूरा छोटा सा आइलैंड, वहाँ पे आके गिर जाता है। उसको नहीं मालूम वो कहाँ पे है और क्या करने वाला है। बहुत ठंडी रहती है। अपनी किस्मत कहे या बदकिस्मती, एक ऐसे घर के पास आके पड़ा रहता है जो किसान का रहता है। तो किसान की बीवी सुबह सुबह जब झाड़ने बाहर आती है तो वो देखती है कि एक छोटा सा परिंदा पड़ा हुआ है, ठंड से काँप रहा है। तो बाजू में गाय का गोबर रहता, वो उठा के उस पर डालती है। थोड़ी वो गोबर से थोड़ा उसको गर्मी लगती है, तो ही फील्स द वार्म एंड उसको अच्छा लगने लगता है। थोड़ी ही देर में उसकी खुशी इतनी बढ़ जाती है कि ठंड में कुछ तो गर्म गिरा मेरे आंग पे, और अपनी आवाज़ निकालने की कोशिश करता है। ही वॉन्ट्स टू सिंग ना, अपनी खुशी जाहिर करना चाहता है। उसकी आवाज़ सुन के बिल्ली पास में रहती है, आती है, गोबर में से परिंदे को निकाल के खा जाती है। बस कहानी इतनी सी है। अब इसमें हम लोगों को सीखना क्या है? नंबर 1, बच्चे ज़िद करते हैं, अपनी अपनी ज़िद मनवाने की पूरी कोशिश करते हैं। एंड ऐसे माहौल में हम लोग माँ बाप बने हुए हैं जहाँ पे बच्चों को पालना इट्स अ बिग चैलेंज। शायद हमारे माँ बाप इतने तकलीफ नहीं पड़े जितने हम पढ़ रहे हैं हमारे बच्चों को पालने के लिए। हमारे टाइम पे 1-2 बच्चे ज़्यादा होते थे, एक दूसरे को देख के हम लोग सीख लेते थे। आजकल पेरेंट्स बहुत कॉन्शियस है, 1 चाहिए, 2 बच्चे चाहिए, 3 बच्चे चाहिए, और वी आर एक्स्ट्रा कॉन्शियस कि उनको अच्छा क्या है, बुरा क्या है। हम बाहर नहीं भेजते उनको, ऑल द टाइम दे आर देयर विद द मोबाइल फोन्स। वो जिद करते हैं, ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन माँ बाप को हमें डिसाइड करना चाहिए कि उनको लिबर्टी कितना दे। व्हाट इज़ देयर, आई मीन इज अ लिमिटेशन, उनका लिमिट क्या पे है। हर बुरी चीज़ जो हम बच्चों के लिए करते हैं और बच्चे समझते हैं कि माँ बाप मेरे बुरे हैं, कुछ भी करने नहीं देते, मुझे यहाँ पे जाने नहीं देते, वो खाने नहीं देते, ये नहीं लाके देते, वो नहीं लाके देते, और कंपैरिजन शुरू हो जाता है। मेरे दोस्त के पास ये है, मेरी सहेली के पास वो ये है, उसके पापा वहाँ पे लेके जाते हैं, उसकी मम्मी ये करती है। हम लोगों को सोचना चाहिए कि हमें क्या देना है बच्चों को। उनकी हर ख्वाहिश पूरी करना इट्स नॉट अ साइन ऑफ गुड पेरेंटहुड।
वी हैव टू ड्रॉ द लाइन ऑफ डिमार्केशन, क्या अच्छा क्या बुरा, एज अ मदर एज अ फादर वी हैव टू डिसाइड, नंबर 1। और बच्चों को ये सिखाना चाहिए, हमारी जिम्मेदारी है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी एज ए टीचर, एज अ पेरेंट, हमारी जिम्मेदारी है कि कहने के लिए जो भी हमारे पे गोबर फेंकेगा, जो भी हमारे पे दुश्मनी करेगा, वो हमारा दुश्मन नहीं होता। कभी कभार हमारे अच्छे के लिए भी सामने वाला हमारे से कुछ बुराई करता है, एंड उस बुराई करने वाले में सबसे ज़्यादा नंबर है अपने माँ बाप का। पेरेंट्स आर सपोज टू बी द बिगेस्ट एनिमीज ऑफ द चिल्ड्रन। वो जब तक समझ सके वो दुश्मन ही समझेंगे। मेरी माँ हमेशा कहती थी, बच्चों को देखो दुश्मन की नज़र से, लेकिन खिलाओ सोने का निवाला, लेकिन देखो दुश्मन की नज़र से। वो जो भी करे अच्छा बुरा तोल के करे, एंड हर दोस्त जो हमें गोबर से बाहर निकालेगा वो हमारा दोस्त नहीं रहता। जैसे बिल्ली आई गोबर से बाहर निकाली लेकिन अब खुद खा गई। ये 3 चीज़ें हमारे बच्चों को सिखाना है हमें। मैं क्यों बोल रही हूँ ये? बिकॉज आई एम एट दी वन एंड ऑफ द चेन एंड एज बचपन स्कूल यू आर एट द बिगिनिंग एंड ऑफ द चेन। अब्दुल सर, आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि शायद ग्रूमिंग यूनिवर्सिटी लेवल पे होता है। ये नहीं, ग्रूमिंग यहाँ पे होता है। यहाँ पे टीचर्स का इन्फ्लुएंस होता है। यहाँ बच्चों को जो सिखाते हैं वो दिमाग लेके यूनिवर्सिटी में आते हैं बच्चे हमारे पास। जब हमारे पास बच्चे आते हैं तो ऑलरेडी 18-19 के हो गए होते हैं, वो ऑलरेडी पेड़ बन चुके हैं। हम लोग उनको झुका नहीं सकते, आप झुका सकते हैं। आप उनको सादगी सिखाइए, आप उनको बताइए कि क्या सही है क्या गलत है। यहाँ पे जो भी होता है दे गो अ लॉन्ग वे, बहुत दूर तक जाते हैं। हमारे पास बच्चे जब आते हैं यूनिवर्सिटी के लेवल पे, जो बच्चे आते हैं उनको बहुत मुश्किल होता है हम लोगों को सही एटीट्यूड सिखाना। लेकिन यहाँ पे टीचर्स की जिम्मेदारी 99% है, मोर देन द पेरेंट्स आई टेल। बिकॉज पेरेंट्स जितना भी कर ले, बच्चा बोलेगा मेरी मैम ने यही सिखाया यही सही है, आप जो बोल रहे वो गलत है। टीचर्स का इन्फ्लुएंस बच्चों पे बहुत पड़ता है, माँ बाप का बहुत कम रहता है। बिकॉज माँ बाप के बच्चे कोई बात नहीं सुनते। आज मेरी बेटी भी सामने बैठी हुई है, उसको बोलो, अगर मुझे उसको कुछ समझाना तो मैं अपनी सहेली को बोलूँगी तो तुम बोलो उसको, मेरी बात उसको समझ में नहीं आएगी। तो माँ बाप का रोल, हम जो भी करें जितना भी करें, बच्चे लगते हैं कि ये शायद मेरी माँ बाप हमारे अगेंस्ट है, हमारी ख्वाहिश पूरी नहीं कर रहे हैं। सो एज अ टीचर, एज अ बचपन स्कूल, इट्स अ बिग रोल फॉर यू टू प्ले। जो आप ग्रूम करके भेजेंगे हमारे को आसान हो जाएगा यूनिवर्सिटी लेवल पे उनको समझाना कि बाहर का वर्ल्ड क्या उम्मीद क्या रख रहा है उनसे। हम प्रोफेशनली ग्रूम कर सकते हैं, ह्यूमैनिटीली नहीं। आप ह्यूमैनिटीली कर सकते हैं, जो आप कर सकते हैं वो हम बिल्कुल ही नहीं कर सकते। यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, टीचर्स का साथ माँ बाप दीजिए, माँ बाप का साथ टीचर्स देंगे, और इसी दौरान 2 हाथों से ही थाली बजेगी और हमारे बच्चे बाहर सामने निकल के आएंगे। गुलबर्गा आज जितना भी स्मार्ट सिटी बन जाए, बट कहते हैं कि बैकवर्ड सिटी है। हमारे बच्चों को सिर्फ 2 चीज़ों की कमी है, एक प्लेटफॉर्म, दूसरा कम्युनिकेशन स्किल्स। आप कहते हैं कि इंग्लिश मीडियम स्कूल है तो उनको इंग्लिश पढ़ाइए, अदर दैन दी उर्दू लैंग्वेज, अरबी पढ़ाना बहुत ज़रूरी है, उर्दू बहुत ज़रूरी है, बट उनको अगर दुनिया में कामयाब होना है तो टीच देम इंग्लिश, लेट देम कम्युनिकेट इन इंग्लिश, लेट देम स्टैंड कॉन्फिडेंटली इन इंग्लिश। जब सामने उनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जब उनका कम्युनिकेशन सही नहीं होता तो वो कुछ नहीं बोल पाते। दे विल स्टार्ट लूजिंग देयर कॉन्फिडेंस एंड दैट इज़ द बिगेस्ट थिंग। गिव देम कॉन्फिडेंस, टीच देम कि एनी प्रॉब्लम इज़ अ स्मॉल प्रॉब्लम। कोई भी ताला हो, कितना भी बड़ा हो, एक छोटी सी चाबी से खुलता है, एंड देर इज़ नो प्रॉब्लम विदाउट अ सोल्यूशन। एज अ टीचर यू कैन टीच दिस। अगर आप ये टीच करके बच्चों को भेजते हैं तो यूनिवर्सिटी लेवल पे हम लोग उनको ग्रूम करके कहते हैं कि गुलबर्गा में ऐसे भी बच्चे हैं जो दुनिया भर में अपना मार्क बनाते हैं। तो बस इतनी छोटी सी गुजारिश है, टीचर्स आप अपना काम कीजिए, पेरेंट्स माँ बाप आप अपना काम कीजिए, यही दुआ कीजिए, यही उम्मीद कीजिए कि आज जो कुछ आप अपने बच्चों के रूप में बो रहे हैं वो आगे चल के पेड़ बनेंगे और आपको छाँव ज़रूर देंगे इंशाल्लाह। दुआ की गुजारिश, शुक्रिया। Thank you so much, ma'am. We respectfully request our chief guest to gracefully step down from the stage to allow our talented perform for your understanding and cooperation. Thank you.
a few minutes we are going to enjoy the gorgeous performances of our young ladies. Can I expect a huge round of applause? Thank you. Claps are the best motivation that you could give to our young ladies. So without wasting further time, let's watch out. Firstly, I would like to call Syed Bilal and Inaya Mariam on the stage to welcome each and everyone. Enjoy the show. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Naya Maria of grade 5. A very warm welcome to our respected guests, parents, teacher, and my dear friends. It's truly a pleasure to have each and every one of you here with us today. Your presence adds special touch to our anniversary. Event that complete without the remembrance of Almighty. Now I call upon Sayyid Ismail Mustafa Standard to perform Qiraat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. Atmosphere here. कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से उजाला कर दे. I'd like to call Sayyida Ayman Fatima of class Upper KG to perform a naat. في الإسلام يا حبيبي يا شفيع يا رسول الله بأمي وأبي فضيف سيري ولا تواصل أتيك يا نبي حبيبي يا محمد أتيك بالسلام والهدى محمد 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 رحمة للعالمين رحمة للعالمين حبيبي يا محمد أتيك بسلام والهدى محمد. Now I invite Umar Khan and Zainab Konin of class Lower KG for Hadith. Hadith number 8. Ad-dinu tarjuma din आसान है. Hadith number 2. मिफ्ताहुल
Number 5. हमेशा सच बात कहो। जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह। And Zainab. Now they are coming whose hands are tiny and hearts are pure. Their smiles are endearing, their laughters are delightful. They are coming to show us how to thank Almighty. Now I would like to call upon our little angels, Fiora group, to give a warm and sweet welcome to all of you present here. Please come on the stage. Everything I own, everything I eat is thanks to you. Every breath I take, I see, is thanks to you. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. All thanks is to Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. All thanks is to Allah. Every drop of rain is a mercy from above. Feeding all the earth is thanks to you. Every the wind when it blows is thanks to you. All thanks is to Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. To you, Allah. All praises are for you. Everything is thanks to you, Allah. Everything is thanks to you, Allah. All praises are for you. Everything is thanks to you, Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. All thanks is to Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. All thanks is to Allah. Reminder of all the things we should be grateful for. Thank you, lovelies. Without taking much of your time, permit us to start the program. Aisha, turbulence around here? Are you ready? We need just one commitment from you, that you will cheer up with applause and hooting. Let's put your hands together as we start the first performance of the function. Now I would like to call upon our little angel Pearl group from nursery class. Please come on the stage. जरा सा महसूस हुआ एक लाइफ की गाड़ी में कस के मारा ब्रेक हो रहा है क्यों कंफ्यूज मेरे दिल मशवरा मेरा तू आजमा के देख यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक 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 बेटा देखो देखो क्या वो पेड़ है चादर ओढ़े या खड़ा कोई हे देखो देखो
दिए हैं नल खुले कहीं हो हम जैसे देखे ये जहां है वैसा ही जैसी नजर अपनी खुल के सोचे आओ पंख जरा फैलाओ रंग नए बिखराओ चलो 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 नए ख्वाब बुन ले मस्ती में डोले बम बम बोले मस्ती में तू डोले बम बम बोले मस्ती में डोले बम बम बोले मस्ती में तू डोले Tiny dots are going to show us the actual heroes who weave the fabric of our society with their dedication and service. I invite the lower KG students, please come on the stage. Do you know who I am? Community helper. I cook tasty food. Friends, do not eat junk food. Always eat healthy food and be strong. Thank you. Hello friends, I am a lawyer as a community helper. Thank you. Hello friends, I am teacher as a community helper. I like to teach my students with love. Thank you. Hi everyone, I am Botman competitive part. Thank you. Hello friends, I am Soldier as community helper. I'm brave and strong. I fight for my country. Thank you. Friends, I'm farmer. I say country helper. देश की धरती सोना गुलेगुल हीरे मोती देश की धरती कैंगा सुमा ऐसे में farmer. I say crop life beat right. I want to thank you. Hello friends, I am a nurse. I am the community helper. My job is thank you everyone. Hello friends, I am a doctor as a community helper. I give you medicine. I was in hospital. I care for patient. Thank you. Everyone, I am excited. I am a community helper. I love. Thank you. Oh, friends, I am Attorney General and a community helper. I am law officer of India. I come under Article 76 of Indian Constitution. I am legal advisor. Thank you. You kids. Now these little creatures are coming show some laziness. It's a choreo of unhurried moves where each movement embodies the joy of taking things slow. Now I invite Sparkle group from nursery class. Please come on the stage. Waqar, Huzaifa, Muhammad Saad, Musab, Zamin, Saad.
छन से टूटे कोई सपना, जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे, कोई रहे ना जब अपना, जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। लिखे जो खत तुझे कबूतर जा जा जा, कबूतर जा जा जा, कबूतर जा जा जा, कबूतर जा जा जा। पहले प्यार की पहले प्यार की पहली साजन को दिया। कबूतर जा जा जा, कबूतर जा जा जा, कबूतर जा जा जा, कबूतर जा जा जा। किसी डिस्को में जाए, किसी होटल में खाए, हो किसी डिस्को में जाए, किसी होटल में खाए, कोई देख लेना हमें यहाँ कहीं घूम गए। चलो इश्क लगाए, 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 चलो इश्क लगाए। To unveil the Fix Fair to us. So be ready to get drenched into the Barbie world. Hi, Bobby. Hi, Ken. You wanna go for a ride? Sure, Ken. Jump in. I'm a Barbie girl in the Barbie world. Life in plastic, it's fantastic. You can brush my hair, undress me everywhere. Imagination, life is your creation. Come on, Barbie, let's go party. I'm a Barbie girl in the Barbie world. Life in plastic, it's fantastic. You can brush my hair, undress me everywhere. Imagination, life is your creation. I'm a flying girl in a fantasy world. Dress me
party, let's go party. Just getting started. Oh, I love you, Ken. Well, in Spain, our performer has transported us to a world of dreams and fantasy, reminding us that sometimes the most magical moments are found in the simplicity of childhood dreams. मेरा जूता है जापानी ये बदलू इंग्लिस्तानी सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी मेरा जूता है जापानी ये बदलू इंग्लिस्तानी सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी मेरा जूता है जापानी अरे भंग का रंग जमा हो चकाचक चबाए आहा अरे ऐसा झटका लगे जिया पे पुनर्जन्म हो जाए जुबान मेरी जान उस पे मर मिट जाए There's something about tonight, tonight, tonight. Something about tonight, tonight, tonight. There's something about tonight, something very special. Something about the way you move that thing, something very special. Something about the way you look at that thing, something very special. Yeah, there's something about tonight, something very special. तेरा हसीन चेहरा तेरे लबों से निकला वहाँ ढूंढ गूगल पे जाके मिलेगा मजनू मेरे जैसा रहा पूरी पटन के साथ लेके बात बनवा ये तेरा राजे टिक 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 These eras, that was really an incredible performance. You really rocked with your energetic performance, kids. Thank you. Yet we are so negligible of its cleanliness. The upcoming gang is going to display that we have to be mindful of our actions.
and to give this earth as it was to the future generation. Now I invite first and second class students, please come on the stage. Hello doctor, there is an emergency. Oh, it's plastic again. I have been seeing the same cases, too many nowadays. छोड़ो प्लास्टिक थैली, हम सब ने अब ठानी, अपना लो कपड़े की कोई थैली नहीं पुरानी। ये सोच सयानी, ये सोच सयानी, ये सोच सयानी, ये सोच सयानी। Good evening, ma'am. What do you want? I want an orange juice, but no straws. ये सोच सयानी, ये सोच सयानी, ये सोच सयानी, ये सोच सयानी। Tons of plastic are produced annually worldwide. By 2050, the ocean could contain more plastic than fish. Less than 14% of plastic used globally is recycled. So please recycle plastic bottles and containers when you can. Invest in reusable shopping bags, mugs and containers. Say no to plastic, save the earth. टिक 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 कसम ये खाए रे टिक 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 प्लास्टिक टिक ना पाए रे टिक 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 कसम ये खाए रे टिक 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 प्लास्टिक टिक ना पाए रे। अगर सुन लो संभलना हम तो बम ये फट जाएगा, ये बहती सी है नदियाँ का ये पानी रुक जाएगा। अगर सुन लो संभलना हम तो बम ये फट जाएगा, ये बहती सी है नदियाँ का ये पानी रुक जाएगा। कि कर दो रहम धरती का ये दम भी घुट जाएगा, कि कुदरत की हनस नसों में जहर ये बस जाएगा। टिक 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 कसम ये खाए रे टिक 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 प्लास्टिक टिक ना पाए रे टिक 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 कसम ये खाए रे टिक 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 प्लास्टिक टिक ना पाए रे। सिचुएशन ड्रास्टिक है, जहाँ देखो प्लास्टिक है, सिचुएशन ड्रास्टिक है, जहाँ देखो टिक 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 कसम ये खाए रे
ना पाए। मैं तो बादलों से दूर जाऊंगी, मैं तो अपना ही सुर पाऊंगी। है जो क्रेजी क्रेजी सपने मेरे, सारे चुन के मैं भूल आऊंगी। हमारा ऐसा दुनिया की हुई नहीं, मैं अपनी दुनिया बनाऊंगी। कि जिंदगी घुमा सीढ़ी बजा के बोल भैया